you took a big step to come back, right? So what idea did you exactly have? मुझे वो चीज़ वहाँ फील नहीं हो रही थी. पैसा बहुत है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, बट देन मुझे अगर शाम को मेरे फ्रेंड से मिलना है या मुझे चाय के लिए किसी को कॉल करना है तो वो लोग वहाँ पे नहीं होते क्योंकि So if there's any youth जो marketing industry enter करना चाहता है, so what's that one skill you want him to have? मार्केटिंग इज वन सच इंडस्ट्री विच इज नेवर गोना डाई बिकॉज आपको कुछ भी बनाना है वो आपको बेचना है अल्टीमेटली. So what was your idea? What did you exactly see in Indore कि यार I need to do this? जो आरएचए का जो मेन फंडा है कि खाने की कमी नहीं है दुनिया में, खाना बहुत है, एक्सेसिबिलिटी की कमी है. जिनके पास एक्सेस में है वो लोग वेस्ट करता है. 40% of the food what we cultivate gets wasted. So RJ community runs on volunteers, right? उनका कभी burnout होता होगा या We do keep themselves like we keep them motivated through activities. I think the more work you bring in front of them, the more active and the more aligned they stay with the work. when you started RHA Indore, so did you have a thought कि क्या हम ये difference exactly ला पाएंगे? Obviously we wanted to grow and we wanted to cover all the clusters. हमारे पास 1.5 साल तक भी हमारे पास कोई डोनर नहीं था. हम लोग खुद से हर संडे को पैसे इकट्ठे करके खाना बनवाते थे, वो भी किसी एक बहुत गरीब वेंडर से, ताकि हम दोनों जगह हेल्प कर पाएं. Society needs what? A donation mindset or a contribution mindset? Should consider them part of our family. If you consider like you're donating something, then I don't think it's the right way to look at it. So अगर budget resources और limitations ना हो, so where would you want to see Robin Hood Army? It was I want to close this organization. Today's guest is someone जो सिर्फ बात नहीं करते, काम करते हैं. 2015 से लेकर आज तक उन्होंने हंगर को नंबर्स नहीं, वजह और जिम्मेदारी के रूप में देखा है. He is the co-founder of Robin Hood Army Indore, एक मूवमेंट जो लेफ्ट ओवर फूड को वेस्ट नहीं, होप में कन्वर्ट करता है. और रॉबिन हुड अकेडमी के थ्रू सिर्फ प्लेट नहीं, फ्यूचर भी सर्व करता है. प्रोफेशनली ही इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजिस्ट हु हेल्प्स ब्रांड्स ग्रो, बट पर्सनली ही इज समवन जो लोगों को ग्रो करने में बिलीव करते हैं. प्लीज वेलकम अमित त्रिवेदी. Thank you Anshika and Admivo for having me here, and yeah, thank you for inviting me. So, Mr. Amit will just go with the first question now. Right. So, as you know that changing countries gives you perspective, exposure and everything. So, you took a big step to come back, right? So, what idea did you exactly have? So, you came here for, you had family or something like that? Or you just, there was a calling that, okay, I need to come back and do my stuff here? So like when you study abroad, you know get kind of detached to your roots, because I grew up here, I was born here, and then I had my friends here, my extended family here. So while studying it was okay, like because initially you don't feel that much that you're away from your friends and everyone, because for me since the very beginning I started feeling that I'm getting detached to something that I wanted to be part of, like Robin Hood Army being one thing. I am the first person to have RHA tattooed on like on the body as well. So I was very close to RHA because from the very initial days. So I would say it was more of a calling than perspective, because I always wanted to do something for the society, the kind of upbringing I had. Also, when I was in abroad, I was working with Akshay Patra briefly when I was there. So Akshay Patra is also one such organization that works Yes, towards I the same remember. cause. So yeah, it was calling because I couldn't do it there. There are norms which you can't really run by, and then you have to do certain things. तो मुझे वापस आना था क्योंकि मुझे वो चीज़ वहाँ फील नहीं हो रही थी. पैसा बहुत है, सारी चीज़ें अच्छी हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी है, बट देन मुझे अगर शाम को मेरे फ्रेंड से मिलना है या मुझे चाय के लिए किसी को कॉल करना है तो वो लोग वहाँ पे नहीं होते क्योंकि आप पैदा वहाँ नहीं हुए. तो या that was the reason why I chose to come back. Chose to come back. So as you know that marketing industry is very fast, right? Right. So if there's any youth जो marketing industry enter करना चाहता है, so what's that one skill you want him to have in order to not get outdated anywhere? I would say you should know that like what's selling. You should be updated if you want to be in the marketing. Marketing is one such industry which is never going to die. Yeah. Like I would say pharmaceuticals is also like one of the industries which is always going to bloom.
सो मार्केटिंग इज ऑल्सो वन सच इंडस्ट्री, बिकॉज आपको कुछ भी बनाना है वो आपको बेचना है अल्टीमेटली. Yes. आप सर्विसेज हो, प्रोडक्ट्स हो, आप किसी भी इंडस्ट्री में हो, आप कितना भी अच्छा आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कितना भी अच्छा डिजाइनर हो, उसे वो अल्टीमेटली वो चीज बेचनी है. एंड एवरीबडी नीड्स अ गाय, मार्केटिंग गाय एंड मार्केटिंग टीम. So this is an industry which is never gonna die. It's always gonna bloom. So lot of opportunities, ample of opportunities in every field. I would, because I'm recently working with a few brands. जो they are having very good technologies, but they're not able to sell because they don't have a marketing team in place. So opportunities बहुत सारी है. Skill वही है कि आपको पता होना चाहिए कि आप जो बेच रहे हो कैसे बिकेगा और उसकी डिमांड कहाँ है. I think if you are thorough with the market, if you are in the market, then you can sell anything, or like you will always have a job. You'll always be in business. Coming to RHA. Right. So, what has been your favorite experience of volunteering, which has taught you more than a textbook? So there were a lot of moments where, like, I was actually, kind of like I got stuck in those moments. बच्चों से बहुत कुछ सीखा. कुछ ऐसी चीज़ें हुई जब पता चला कि एक्चुअल में नीड बहुत ज़्यादा है. एक बच्चा है, वो मुझे हमेशा याद रहता है, उसका नाम आदित्य है. ही इज़ वेरी इंटेलिजेंट गाय. और उसको जब वॉलंटियर्स पढ़ाने आते थे तो पहले वो उनका टेस्ट लेता था कि आप मुझे बताओ, आपको ये सब आता है, आप बताओ इंडिया का वाइस प्रेसिडेंट कौन है. और अगर आपको नहीं पता है तो बोलता था भैया इनको तो ये भी नहीं आता है, मुझे क्या पढ़ाएंगे. ठीक है. सो दे वर लाइक किड्स एंड देयर वर ऐसे मोमेंट्स जहाँ पे आपको लगता है कि एक्चुअली आप एक आदमी है, मुझे याद है, उसको हम लोगों ने खाना खिलाया था. अंतिम स्क्वायर है. खाना देखते से ही वो रोने लग गया. उसने 3 दिन से खाना नहीं खाया था. और उसने बोला था आपको भगवान नहीं भेजा है, क्योंकि मेरे पास खाना था ही नहीं, मुझे नहीं पता था मैं क्या खाऊंगा. सो ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स थे जहाँ पे आपको लगा कि आप एक्चुअली में वो काम कर रहे हो जिसकी ज़रूरत है. क्योंकि जो आरएचए का जो मेन फंडा है कि खाने की कमी नहीं है दुनिया में, खाना बहुत है. एक्सेसिबिलिटी की कमी है. जिनके पास एक्सेस में है वो लोग वेस्ट करता है. 40% of the food what we cultivate gets wasted. So which is a huge number. So accessibility वाला इशू है. और ऐसे मतलब रोज ही कुछ ना कुछ होता है जब आप ऐसे देखते हो कि हाँ आप जो कर रहे हो बहुत अच्छा है. आपके बहुत सारे बच्चे हैं जिनको हम लोगों ने जब पढ़ाना शुरू किया था वो कॉलेज में है. दे आर ऑन माई इंस्टाग्राम एंड दे पिंग मी कि भैया आप हमसे मिले ही नहीं हो, इतना टाइम हो गया है. They are like part of my extended family. Their families know us. They call us on dinners and lunches कि आप भैया आए नहीं हो, इतना टाइम हो गया है. So this is the family that we have earned, and we still like going very strong and working towards the same thing. No, it is a big thing. I'd like to add something on this, that once you had this in your mind that okay, I want to help people. Right. So you might have seen some people that okay, they are in need and I really need to help them. So what exactly was the idea behind? Because you were the one who started the Indore chapter, right? Right. So Robin Hood Army really go beyond the walls exactly to help people. Right. So what was your idea? What did you exactly see in Indore कि यार I need to do this? ये तो तब का इंदौर है जब स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लॉन्च नहीं हुआ था. तब स्लम्स होते थे यहाँ पे बहुत सारे. I think it did not start from Indore. My idea was not restricted to a city, but Indore, I was fortunate enough to be part of Indore when I started it, because the Nigam and the people who are in power were really supportive. It was a bit personal because I saw my mother struggling when she was in hospital, and we didn't have enough money back then to support her. And then the idea why I wanted to be associated with social work, I wanted to work for the hospitals, for the government hospitals, कि उनका हमें बहुत ज़्यादा चेंज करना है. वहाँ पे चीज़ें स्ट्रीमलाइन नहीं है. बहुत सारे लोग आज भी परेशान होते हैं, उन्हें पता ही नहीं है कहाँ पे जाके क्या चीज़ करना है. और me, because I was also studying pharmacy, so somewhere I was also related to medicine and everything. So idea was कि मुझे काम करना था, and this was when I was this happened when I was 16. I lost my mom. So I was going through like this, and then I had the idea that I have to start something. Then I started working with NSS when I was in college. तो NSS के साथ मैंने 3-4 साल काम किया. फिर काम करने के बाद एक चीज़ समझ में आई कि मुझे NGOs के साथ काम नहीं करना है. मतलब मुझे ऐसी जगह काम करना है जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व ही ना हो, क्योंकि काम करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है. अगर आप सच में काम करना चाहते हो तो द यूनिवर्स विल हेल्प यू, द पीपल विल हेल्प यू. डोंट हैव टू रेज फंड्स. हम लोगों ने इंदौर में अभी तक ऑलमोस्ट 22 लाख लोगों को खाना खिलाया है, और उसके लिए हमने 22 रुपए भी रेज नहीं किए होंगे. सो
आइडिया वाज क्लियर कि ऐसी चीज करनी है जहाँ पे पैसा जरूरत ही ना हो. देन अंशु, वन ऑफ द को फाउंडर्स, शी रेड अबाउट रॉबिनहुड आर्मी. हम लोग 16th सिटी थे जब मैंने RHA स्टार्ट किया था. अभी वी आर इन 400+ cities. Oh, So that's it was really very big. baby organization back then, and then the idea was very good that you don't have to raise funds. You just have to act as a postman basically. Yes. कि खाना लेके आना है, you are working, acting as a bridge. कि खाना लेके आना है, जिसे जरूरत है उसको देना है. आप कुछ भी नहीं है आपका बीच में, आप सिर्फ वॉलंटियरिंग कर रहे हो. You are just you are an important bridge between the needy and the donor. Yes. So that was the idea, and Indore being like is very active city. Like people are very active. Everybody wants to do something or is already doing something. Yes. So हमें काफी सपोर्ट मिला है यहाँ से. 2018 में नगर निगम के डिविजनल कमिश्नर थे संजय दुबे सर. He gave us one van, food van. He built one cold storage facility for us. Oh, nice. And आहार ऐप का अगर आपने सुना हो तो उस पर भी हम ही लोग बहुत एक्टिवली काम करते थे. तो आज भी हमारे पास वैन है. We don't have the donor to get it insured though. Okay. But we still use it without insurance. So yeah, like city supported us, and we were very fortunate enough to be part of like Indore when we started it. That's great. So अगर budget, resources और limitations ना हो, so where would you want to see Robinhood Army? So since we started at the only goal of mine with RHA was I want to close this organization because I think हम उस चीज़ के लिए काम कर रहे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. वो प्रॉब्लम ही एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए. Okay. हम काम कर रहे हैं एक्सेसिबिलिटी के लिए जो फूड का है. फूड इज अ बेसिक नीड. मतलब रोटी, कपड़ा और मकान. ठीक है. रोटी के लिए आई डोंट थिंक कि लोग होने चाहिए जो आपको रोटी दिलवा रहे हैं. रोटी शुड लाइक, ऐसा नहीं है रोटी की कमी है, खाने की कमी नहीं है, खाना बहुत है हमारे पास. हम लोग आई थिंक दुनिया के टॉप 5 एक्सपोर्टर्स में से आते हैं अनाज के लिए. और उसके बाद भी अगर हमारे पास खाने के लिए 2 टाइम की रोटी नहीं है, देन इट इज शेम एक्चुअली. तो वहाँ पे कुछ ना कुछ है जो सिस्टम में सही नहीं है, या फिर जो लोगों के पास रिसोर्सेस हैं उनमें कुछ सही नहीं है. तो आई थिंक ये ऑर्गेनाइजेशन उस चीज़ के लिए काम कर रही है जो चीज़ें एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए. तो आई वुड बी वेरी हैप्पी व्हेन वी डोंट हैव द नीड टू हैव रॉबिनहुड आर्मी इन द सोसाइटी. तो दैट इज माई गोल, दैट वी डोंट रियली नीड रॉबिनहुड आर्मी. मेरा टैटू खराब हो जाएगा बस, बट ठीक है. पढ़ाई का भी हम लोग जैसे काम करते हैं, आई थिंक बेसिक चीज़ है. ऑब्वियसली बच्चों को हमें थोड़ा मोटिवेट करना पड़ता है, बट आजकल ऐसा है ना कि मैं एक बच्चे की बहुत अच्छी कहानी सुनाता हूँ. उसे हमने पिक किया था 2016 में. संजय नाम है उसका. भंवरकुआं स्लम में रहता था. भंवरकुआं 2 स्लम्स, वहाँ पे 2 पार्ट है. तो जो एक खतरनाक वाला पार्ट है, वहाँ पे आप जाके खाना नहीं बांट सकते. मतलब आप अगर आप उनके साथ कनेक्टेड नहीं हो तो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट होगा खाना बांटना. तो हम लोग उसको पढ़ाना शुरू किया और उसने बोला कि सर मैं चोरी करता हूँ और 400 रुपये कमा लेता हूँ रोज, क्या आप मुझे पढ़ा के दिलवा पाओगे 400 रुपये? तो वी रियली डिड नॉट हैव एनी आंसर, क्योंकि उसको 400 रुपये कमाने के लिए उसको 10 साल और पढ़ना पड़ेगा, तब जाके वो कुछ कमा पाएगा. ऑब्वियसली उसको वो समझा पाना इज समथिंग. हम उस एज में लाइक आई वाज 20 बैक देन, तो मेरे लिए भी वो चीज़ समझना कि मैं इसको कैसे समझाऊंगा कि हाँ एक्चुअली तू बाद में जब कमाएगा तो 40,000 कमा लेगा, तेरे को 400 की जरूरत नहीं पड़ेगी. बट उस बच्चे को उस चीज़ से निकालना इज मतलब आप उसको चेंज नहीं कर सकते ऐसे एक दिन में. तो वो जो पढ़ाई वाली जो चीज़ है ना, जो अवेयरनेस है, वही नहीं है कि हमें पढ़ना भी ज़रूरी है. क्योंकि हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे बहुत पढ़े लिखे लोगों के पास भी जॉब्स नहीं है, जो कि होना चाहिए. माई लाइक सिर्फ मैं नहीं, वैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो बाहर पढ़ने जाते हैं, क्योंकि हमें जो यहाँ पढ़ना है उसके लिए एक्सेसिबिलिटी नहीं है. दैट 100 IIM में मतलब मान लो अगर फॉर एन एग्जाम्पल 100 सीट्स हैं तो उसके लिए कम से कम 1 लाख बच्चे एग्जाम दे रहे हैं, विच इज लाइक द पॉपुलेशन प्रॉब्लम एंड लाइक लॉट ऑफ इश्यूज आर. आई डोंट वांट टू गेट इनटू पॉलिटिक्स, ऑब्वियसली दैट्स नॉट माय फोर्टे, बट माय गोल वुड बी दैट वी डोंट रियली नीड दिस ऑर्गेनाइजेशन इन द सोसाइटी, बिकॉज़ वो चीज़ तो अपने आप होनी चाहिए ना. So I would want you to tell me a funny instance where you really wanted to help, but they refused to take your help. So yeah, I'll tell you an incident where like it was the other way around, where we the incident happened with a donor instead of like the consumer. So we went to this very prestigious medical college, and they I wouldn't take the name obviously. उनके यहाँ पे कम से कम 200 से 300 लोगों का खाना डेली वेस्ट होता था. डेली वेस्ट होता था. और आई गॉट दिस न्यूज फ्रॉम द स्टूडेंट्स ओनली, बट दे कनेक्टेड मी टू द वार्डन लाइक हु वाज इन चार्ज, जो हमें खाना दे सकते थे. वी वेंट देयर, वी वर टॉकिंग, एंड देन सडनली आउट ऑफ नोवेयर ही स्टार्टेड शाउटिंग एट अस, yelling at us कि तुम लोग चोर हो, तुम खाना बेचते हो. ठीक है, नहीं तो कोई भी ऐसे कौन से पागल लोग हैं जो फ्री में खाना लेके बांट रहे हैं.
और कि तुम्हें तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हें काम नहीं करना है, ऐसे आ जाते हो, कोई क्यों ही किसी का खाना बचा हुआ बांटेगा, तुम्हें क्या मिल रहा है इससे, हाँ तुम चोरी कुछ तो करते हो, इसका खाना बेचते होगे तुम लोग, तभी हमसे लेने आए हो। तो उन्होंने हमें बहुत चिल्ला के भगा दिया था, which was very funny, like which is थोड़ा सा insulting, but like we No, laughed but about then it. she wasn't ready to believe that you guys were actually helping people. Yeah. Okay. That's So- crazy. And with kids, like lot of incidences where मैंने बच्चे से मार खाई है, उसकी बहुत फेवरेट टीचर थी। आई हैव इट ऑन माई इंस्टाग्राम एज वेल कि आपने पलक दीदी को भगा दिया, उनकी शादी करवा दी है, आप मुझे लेके नहीं आते हो। एंड शी हैड एक्चुअली हैड अ गो एट मी एंड शी बीट मी लाइक एनीथिंग कि आप और लाइक उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम था, शी वाज हैंडीकैप एंड शी हैड अ गो एट मी लाइक कि आपने भगा दिया है दीदी को, आप शादी करवा दी है उसकी और आप लेके नहीं आते हो, मैं उनसे ही पढ़ूंगी, नहीं तो नहीं पढ़ूंगी। And she like slapped me like 3-4 times. And somebody shot it, then it's on my Instagram. Okay. Yeah, a lot of similar incidences. फिर वो बच्चे का मैंने बताया था, आदित्य वाला, Yes. कि मैं उनसे ही पढ़ता हूँ, इन्हें खुद ही नहीं आता है, मुझे क्या पढ़ाएंगे। तो बहुत सारे। आप mainly ऐसे बच्चों से mostly मिलते रहते होंगे because Right. obviously they are kids, they do not know what exactly are they talking about. Right. So RHA community runs on volunteers, right? So if you have that big of a population, obviously उनका कभी burnout होता होगा या फिर उनका एक purpose है करने का. So how do you keep that alive in them? I think because in the first place it comes from within. Why people join, we do keep themselves like we keep them motivated through activities. I think the more work you bring in front of them, the more active and then the more aligned they stay with the work. और मैं सिर्फ मतलब हमारा कई बार ऐसा होता है लाइक ऑन पेपर, और ये आजकल तो बहुत ज़्यादा हो गया, पहले इतना इशू नहीं था कि जितने वॉलंटियर्स हमारे ग्रुप में होते हैं उसका 10% ही लोग एक्टिव होते हैं। 10% इज़ अ बिग नंबर, उतने भी नहीं हो पाते हैं कभी कभी। पहले थोड़ा सा अलग होता था, दिस अ शिफ्ट अभी पिछले 3-4 सालों में, स्पेशली कोविड के बाद से। तो यही है कि द ओनली थिंग दैट वी ऑल वर्क फॉर, लाइक हम जब भी बात करते हैं दैट वी आर इन द बिजनेस ऑफ स्प्रेडिंग स्माइल्स। Yes. And if we say business is always give and take. So if you are spreading smiles, you're also receiving them. So we also count our numbers in terms of smiles. That हम लोग कभी खाना बांटने जाते हैं तो हम ऐसे नहीं बोलते 200 लोगों को खाना बांटा है, because we received 200 smiles today. So that is how we, like, it's all like we are gaining everything in terms of smiles. Yes. Like a lot of people when you speak to them, they say कि आज मुझे बहुत अच्छे से नींद आई। There are people, अभी एक I recently met someone, he's going through divorce. Okay. Or he said, I lost purpose of my life. I actually tried committing suicide twice or thrice. And then when I'm here, when I'm working, I really feel like I'm celebrated, I'm needed. Kids look up to me, and there are people whose like needs are more than me, who are suffering from like very basic things. तो मुझे ऐसा लगता है कि नहीं, you gave me purpose. He came to me that I'm very active and I want to keep doing this. So there are a lot of things like people, it comes from within. And then we say we are in the business of spreading smiles. So that is No, one but business. then that's such we a are doing, big compliment that someone who was about to commit suicide, Right. and then he just revived back in order to, now he's helping people. That's such a big compliment to you Yeah, guys. actually. A lot of people, I met a lot of people in my 10 years of journey with RHA who actually were, जैसे आज भी उनसे मिलता हूँ ना, कि उनको बोलते कि हमें RHA से निकाल दोगे, पर RHA हमारे अंदर से कैसे निकालोगे। So बहुत सारे लोग हैं ऐसे who are really passionate about it. Impact always looks small at the beginning when you started RHA Indore. So did you have a thought कि क्या हम ये difference exactly ला पाएंगे? I don't think I ever had that. I think I should have had that like when I look back, क्योंकि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि हमें कुछ ऐसे कि हमें demotivate कर रहा है या फिर नहीं हो पा रहा है। I think for initial 2 years we were hardly 30 volunteers. Okay. And उनको ही ऐसा होता था कि हमें ऐसा लगा नहीं कि हमें और ज़्यादा लोगों की ज़रूरत भी है, क्योंकि जो हम काम कर रहे थे उसमें we were very obviously we wanted to grow and we wanted to cover all the clusters. हमारे पास 1.5 साल तक भी हमारे पास कोई डोनर नहीं था। हम लोग खुद से हर संडे को
पैसे इकट्ठे करके खाना बनवाते थे, वो भी किसी एक बहुत गरीब वेंडर से, ताकि हम दोनों जगह हेल्प कर पाए। जो ऐसे 10 रुपए में थाली बेचते हैं, 10 रुपए की पूरी सब्जी बेचते हैं, उनको हम जाके उनसे खाना बनवाते थे, ताकि एक वेंडर को एक दिन का एक ऑर्डर मिल जाए और उस खाने से हम लोग बच्चों को जाके खिलाते थे। पर हम खिलाते नहीं थे, हम पहले उन्हें पढ़ाते थे 2 घंटे, उन्हें हम बेसिक्स पढ़ाते थे, उसके बाद फिर हम उन्हें खाना खिलाते थे, हम साथ में ही खाते थे। तो संडे हमारा लंच उनके साथ ही होता था। एंड इवन लाइक उसके बाद भी एक्चुअली मैं अकेले ही रहता था, और आई थिंक 1.5 साल तक मैंने मेरा ब्रेकफास्ट एफिटल में ही खाया होगा, क्योंकि एफिटल का खाना हमारे पास आज भी आता है डेली। एंड आई वाज लाइक बीइंग लाइक लिविंग अलोन, यू हैव टू कुक फूड और यू हैव टू गेट इट फ्रॉम समवेयर, राइट? But I think that was one of the motivation to go for a food call every day, that you get like food from Effital every day. Every morning you are having breakfast from Effital, which usually you cannot afford, like being a student. There are a lot of things, like I don't think anything demotivated us to stop it from doing. इसीलिए मेरे पास ऐसी कोई मेमोरी नहीं है जब हमें ऐसा लगा हो कि नहीं यार नहीं हो रहा है, अब हो नहीं पा रहा है। आज भी RHA एज ए होल, उसमें बहुत सारी ऐसी प्रोसेसेस हैं जो इंदौर से ली गई हैं। हमने वी वर ऑलवेज एक्टिव इन थिंकिंग। जैसे हम लोगों ने एकेडमी शुरू किया तो हमें किक नहीं मिल रहा था पढ़ाने से, खाना बांटने से, तो हमने पढ़ाना शुरू किया। एंड दैट टर्न्ड आउट टू बी लाइक रॉबिन हुड एकेडमी। नील वाज वेरी क्लियर कि हमें खाने के अलावा कुछ नहीं करना है, बट इट एक्चुअली गेव हिम अ सेंस दैट एकेडमी इज रियली समथिंग दैट कैन हेल्प। और हमारा उसमें भी मोटिव कितना था, हमने हमेशा शुरू से ये डिसाइड किया था कि हमें सिर्फ एक बच्चे की लाइफ चेंज करनी है। अगर हम एक की भी चेंज कर पाए तो हमारा पूरा ये शुरू करने का मोटिव सक्सेसफुल हो जाएगा। उससे ज्यादा हमें नहीं करना है। तो एक बच्चे से शुरू किया था, आज बहुत सारे बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे जो कॉलेजेस में हैं, बहुत सारे बच्चे जो काम कर रहे हैं। आई एम स्टिल इन टच विद देम। एक बच्चा है, उसने वो इंदौर डिस्ट्रिक्ट में 2nd रैंक थी उसकी, 97% था उसका 12th में। हमारा बच्चा है वो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अब बहुत अच्छी जगह हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। और एक ही बच्चे का सोचा था। खाने का भी यही था कि हम तो शुरू में सोचते थे, जब मैंने बताया भी रिसेंटली शेयर किया था, हमें भगा दिया था। पीपल यूज्ड लाइक देयर वर लॉट ऑफ रिजेक्शंस, 100% रिजेक्शन हमारा स्कोर था। हमें एक भी कहीं भी जगह ऐसे नहीं मिलता था, फिर भी हमें उससे बुरा नहीं लगता था। वी यूज्ड टू हैव अ लाफ अबाउट इट कि ठीक है यार, ठीक है, वो गधे हैं, उनको समझ में नहीं आता, जो सच में समझेंगे वो समझेंगे। तो कभी लगा नहीं कि कोई सेटबैक है या फिर कोई पुश कर रहा है कि नहीं मत करो। हमेशा ऐसा लगता था करते, और इतनी क्रेजी हो जाते थे। 15 अगस्त में जब हम लोगों ने ये वाला, जिस साल मैंने टैटू बनवाया था, हमारा मिशन था हमें 500K लोगों को सर्व करना था। और हमने इंदौर में कुछ 60,000 मील सर्व की थी, फ्रेश फूड बना के। एंड वी वर सो मच ऑक्यूपाइड इन इट। और एवरी 15th अगस्त दिस हैपेंस। 1 महीने 1.5 महीने से आप इतना ज्यादा लग जाते हो कि आपको आपका पता ही नहीं चलता आपके आसपास भी दुनिया है या लोग हैं। आप सिर्फ उसी में लगे रहते हो। यू आर टॉकिंग टू डोनर्स, यू आर टॉकिंग टू मीडिया हाउसेस, यू आर टॉकिंग टू volunteers, this, that, and I ended up having a tattoo because I had nothing else to like think about. Like यार और कुछ मुझे फील ही नहीं होता इसके अलावा। so positives इतने ज्यादा थे कि नेगेटिव कभी ऐसे फील ही नहीं हुआ, कोई सेटबैक नहीं था। so yeah, unfortunately there was no such moments. So donation mindset और contribution mindset दोनों different होते हैं, right? So according to you, society needs what? A donation mindset or a contribution mindset? I think I already touched upon this. We should consider them part of our family. If you consider like you're donating something, then I don't think it's the right way to look at it. Sometimes we just, हम सोचते हैं मेरा पाप कट गया, like किसी को देना, हमने 10 रुपए दे दिए। या फिर जो हमारे साथ बहुत होता है कि जब लोग कपड़े डोनेट करते हैं तो सिर्फ निकाल के ऐसे दे देते हैं कि हमारे घर से बस चला जाए। और फिर उसमें दे फील सेंस ऑफ प्राइड ऑल्सो कि यार मैंने किसी को दिया है। आई डोंट थिंक दैट्स द राइट वे टू थिंक। आई रिसेंटली रिसीव्ड सम ऑफ द कॉल्स जहाँ पे खाना बचा होता है, तो दे स्पीक इन अ मैनर कि ले जाओ, तुम्हारा हेल्प हो जाएगी, हमारे पास इतना बचा है, तुम्हें चाहिए तो ले जाओ। So this is not how you like actually communicate when you are actually, I am the one helping him or we are the one helping him जो खाना खा रहे हैं। तुम्हारे लिए तो तुम वेस्ट कर रहे हो, like and you don't have that sense कि तुम खाना वेस्ट कर रहे हो। Because people think that if they own something that becomes their property, कि खाना मैंने खरीद लिया तो मतलब वो मेरा हो गया, अब उसका मैं कुछ भी करूँ। So I don't think अभी I'm like I've recently started working on civic sense। तो जैसे आज बहुत कॉमन है, लोग कार से बाहर फेंक देते हैं कचरा, जहाँ थूकना है वहाँ थूक देते हैं। और तो आई डोंट थिंक दे कंसीडर, उनके अंदर तो दोनों ही माइंडसेट नहीं है। कंट्रीब्यूशन, डोनेशन, मतलब आई डोंट थिंक दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज। एंड सो आई वुडंट फेवर लाइक दैट यू आर
donating or giving something out as a mindset कि आप donate कर रहे हो, that you are helping someone. Yes. I think that is your responsibility to give back to the society. You have whatever you are or whatever, like, you breathe the same air, you eat the same food. So I think you should have that mindset that you are contributing to your family. That's Yes. all extended part of one extended family, Vasudhaiva Kutumbakam. They're all part of your family. You're doing it for your family. Certainly. Not like they are not below you. If you are donating, that makes you think that you're helping someone who's below you. Yes. I don't think that's the right way to go about it. Okay, but then, as you said, that each and every one of them is equal. Right. But people do not actually think like that, right? I do, I Even get the house help which are coming to help them, they treat them as कि चलो ठीक है, आपको ये मुझे अब नहीं पहनना है, ये मेरा पुराना हो गया है, तो you take it, and they, as you mentioned, they take pride in it. Right. So how do you exactly deal with those people who already exist in the society? I don't think you can teach them. You'll have to. It will come with time. It is as similar as you preach a religion. Yeah. So if you want to start a new religion, you can start with 5 people. अभी bloom नहीं करेगा. 500 साल बाद बहुत बड़ा हो जाएगा. Yes. You need to change the society, change the people. You can't change them really. Yeah. Sometimes you have to change them. So I don't think you can bring that change in people's mentality. Because I think me being me, sometimes like I face it, like उसके drawbacks भी हैं कि कई लोग सामने से ही they start misusing you. Yeah. Because happened with me, happens a lot of time, but that even that never changed me. Because there are few bad people, but I was never bad. So how can I change myself for some bad folks? So मतलब मेरे साथ ऐसा होता है, कोई हाउस हेल्प है और मैंने आज तक ऐसे कि ठीक है आप दीदी इतना पैसे लेते हो, 4 बार के रख लो, आगे आप आ जाना खुद से, पर वो खुद से नहीं आते. पर ऐसा नहीं होता कि मैं एक इंसान की वजह से बाकी लोगों पे ट्रस्ट करना बंद कर देता हूँ. और ऐसा होता है, हम लोग वो प्राइड ले लेते हैं. अब जैसे मेरे घर में जब मैंने घर शिफ्ट किया था तो बहुत सारी चीजें थी जो मैं यूज नहीं करता था, तो मैंने उनको सब दे दिया. मतलब अब देन वी हैड अ फाइट आल्सो. मेरे भाई बोलता मम्मी के बर्तन क्यों दे दिए. तो क्या यार, मैं यूज नहीं कर रहा हूँ, मम्मी है नहीं, ठीक है, कोई है नहीं, कोई यूज नहीं कर रहा है, वो बेचारी यूज करेंगे तो उनको काम आएंगे. वी हैड अ लॉन्ग फाइट अबाउट इट कि नहीं वो चाहिए तो मुझे. मैंने कहा यार ठीक है, कोई यूज कर लेगा. तो घरों में भी ऐसे डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं. बट ऑब्वियसली ही अंडरस्टूड लेटर, ही वाज वेरी यंग. एंड वो चीज आपको ना बहुत बार पुश करनी पड़ेगी. आप उनके साथ, आप किसी को सिखाओ मत. आप सिखाओगे ना तो आप कभी नहीं सिखा पाओगे. आप उनके सामने वैसे बिहेव करो जैसे आप चाहते हो. वो आपसे चिढ़ेंगे अगर वो चेंज नहीं होना है, और जब होना होगा ना तो खुद से हो जाएंगे. पर उसमें भी वो प्राइड ये लेंगे कि मैं ऐसा हूं और मैंने तुम्हें सिखाया है. तो आप उसको सुन लो कि हाँ आप ही ने मुझे सिखाया है, तो वो सुधर जाएंगे. आप उनको सिखाओगे तो कोई भी चेंज नहीं होता. कभी भी सिखाने से कोई चेंज नहीं होता. Yes. आपको उनके सामने करके ऑब्वियसली दिखाना पड़ता है. Okay. So, as you spoke about the movement of civic sense that you recently are entering that part also. Right. So, can you please throw some light on that as well? So it's not something that we are doing with Robin Hood Army. There's one more organization that I'm part of, goes by name Vasunnati Foundation. Okay. The whole idea of it to work on sustainability and teach some civic sense right from the school level. Okay. So we are building some exercises and presentations where we are teaching kids right from the beginning कि हमें ये चीजें करने ही नहीं चाहिए. लाइक उस एज में हम सिखा सकते हैं, बाकी एज में हम सिर्फ अवेयर कर सकते हैं, हम उन पे फोर्स नहीं कर सकते. तो अगर बच्चे उस टाइम से सीखेंगे, जैसे मतलब हमें उन लोगों से शुरू करना है जो बाद में जाके वो चीज सीखेंगे. तो वी आर फोकसिंग ऑन स्कूल्स. हमारा कल ही एक सेशन है सिंधी कॉलोनी गवर्नमेंट स्कूल में. ऑल्सो वी आर ट्राइंग टू रिनोवेट और रिस्टोर एंड क्लीन पब्लिक प्लेसेस. अभी हम लोगों ने राला मंडल क्लीन किया था लास्ट मंथ ही. हाँ, तो हम लोगों ने पूरा ट्रैक किया नॉर्मली और पूरा हम लोगों ने क्लीन किया. और उसके साथ साथ ऑल्सो द आइडिया इज जो बच्चे स्कूल में और कॉलेजेस में पढ़ रहे हैं who cannot afford their tuition fee. I was once such student when I was into college. So there was a lady who used to sponsor 50% of my tuition fee. So the only thing that was expected out of me that every semester I top. And like she still sponsors like about 90, like she's 92 and she still sponsors about 16 kids every year. तो जो बच्चे अच्छा पढ़ते हैं, तो she used to sponsor 50% of my fee when I was in college. Okay. So that's like from where the idea arose that I actually want to do something similar. And कि ऐसे बच्चे जो पढ़ना चाहते हैं, तो we are sponsoring 2 kids अभी, और हम उसके स्कूल भी चेंज नहीं कराते हैं.
और आप जिस भी स्कूल में पढ़ रहे हो उधर ही हम आपको डोनर दे देता. Okay. तो ऐसे बच्चे जो लोग अभी कोविड में देयर वाज लाइक 2 गर्ल्स जिनके साथ थोड़ा सा लाइक सम मिसहैप्स हैपेंड एंड वी आर लुकिंग आफ्टर देम. ये तो मैं पर्सनली कर रहे थे हम लोग, बट अभी देन वी थॉट लाइक कि हमारे पास ऐसे काफ़ी डोनर्स हैं जिनको मैं जानता हूँ जो पर्सनली काफ़ी अच्छी प्लेसेस पे हैं हु रियली वांट टू हेल्प. तो वी कैन कनेक्ट देम टू द किड्स जो लोग पढ़ना चाह रहे हैं, सो दे कैन एक्ट एज देयर गार्जियंस. Yes. सो माय रोल विल बी जस्ट कनेक्टिंग देम एंड देन द रेस्ट फ्रॉम देयर दे कैन टेक इट अप. कि बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, देन बच्चे को भी हम लोग ऑब्वियसली विल टेल देम द एक्सपेक्टेशंस कि आपको पढ़ना है, बस आप अच्छे से पढ़ोगे तो आपका फीस का आपको टेंशन नहीं, आप पढ़ाई करो. Yes. So that is one of the ideas to start Vasunnati, and under that only we are starting the civic sense wala and sustainability wala drives. So you lead this army, the Indore chapter. Obviously आप ऐसा सोचते हैं कि चलिए ठीक है, if I'm helping somebody, तो आप वो नहीं सोचेंगे कि वहाँ से यहाँ जाने में मेरा फ्यूल जा रहा है, या फिर मुझे जो भी वहाँ पे जाना है and then I need to distribute food to them, तो आप अपने जेब से लगा देंगे पैसा. But then the volunteers that you have, do you think they also carry the mindset that you're having? अगर वो aligned नहीं है, तो that's a big problem. So how do you exactly align them towards your goal that okay, we do not have to think about the money part? और फिर जब आप अगर उन्हें select भी कर रहे हैं, शायद से selection होता है या नहीं, but अगर आप select भी कर रहे हैं, तो वो कई बार ये सोच के नहीं आएंगे कि यार this will involve money, I shouldn't do that. So how do you clear that thought or clear the air between you guys? Okay, so there are two things. First, that we do not select them. Okay. Anybody can join of any age. So मतलब we are open to everyone. दूसरा चीज़, हम लोग शुरू में भी ये चीज़ पहले एक दिक्कत होती थी कि हम लोग सर्टिफिकेट्स नहीं देते थे. अभी हम लोग सर्टिफिकेट्स भी देते हैं टू स्टूडेंट्स एंड हु वांट टू वॉलंटियर. सो पहले वो थोड़ा सा मुश्किल होता था टू गेट पीपल, बट स्टिल लाइक द एक्टिव नंबर ऑफ पीपल बैक देन वर मोर. Yeah. Even after giving them certificates, अभी वो थोड़ा नंबर कम है. That is like across Robin Hood Army. अब जो बात आई फ्यूल्स की और कुछ जो नॉमिनल एक्सपेंसेस हैं जो लगते ही हैं लोगों के, अब उसमें क्या होता है कि वी गिव देम दिस ऑप्शन कि अगर आपको कहीं ड्राइव पे आना है तो फर्स्ट आस्क दैट यू आर अवेलेबल, दैट यू जस्ट ड्रॉप ए मैसेज इन द ग्रुप दैट यू आर अवेलेबल बट यू डोंट हैव अ व्हीकल. Okay. So we can connect you with someone who's coming from the same area and then you can tag along. Yeah. तो आपको आपकी फ्यूल की टेंशन नहीं है. कभी कभी क्या होता है क्योंकि हमारा पूरा काम ही ट्रैवलिंग से हो रहा है, खाना उठा के दूसरी जगह लेके जाना है, तो उस सेंस में हम क्या करते हैं कि आप अगर उस एरिया से कोई नहीं आ रहा है तो आप सिर्फ एक तरफ से मैनेज कर लो और जहाँ पे भी कलेक्शन साइट है वहां पे आ जाओ. ठीक है, आप बस यूज कर लो, ऑटो यूज कर लो, या फिर अगर पॉसिबल है पास में हो तो हम लोग पिक कर लेंगे. आप वहां पे आ जाओ और फिर वहां से तो आप वॉलंटियर्स के साथ यू कैन हेल्प एंड फिर हम आपको ड्रॉप भी कर देंगे. सो लाइक इन मोस्ट केसेस हम लोग ये प्रोवाइड करते हैं. कुछ वॉलंटियर्स ऐसे होते हैं दे गो आउट ऑफ द वे, और वो खाना भी लेने आ रहे हैं तो वो ऑटो बुक करके आते हैं, खाना बुक करेंगे, उनके पास गाड़ी नहीं है, वो उबर करेंगे, उबर से आके खाना पिक करेंगे, उबर से ही खाना डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, फिर उबर से ही घर जाएंगे. Okay. सो आई रिसेंटली अटेंडेड अ ड्राइव इन हैदराबाद. तो वहां पे वो तो एक जगह पे हम लोग अभी हम लोगों ने किया था जहाँ पे हम लोग स्टैंड अप कॉमेडियंस बुलाए थे और उनके साथ हम लोगों ने बच्चों के साथ कुछ गिग किया था. सो एक पूरा क्लस्टर के 9-10 बच्चों को हम लोग दो ऑटो से लेके आए थे. Okay. और विच वाज फार, मतलब एक ऑटो का ही मतलब इट did cost us about like 1,500-2,000 rupees just to bring them to that place. Yeah. But because I think if we can afford it, we are doing it. ये हमें ऐसा नहीं कि अलग से करनी है, हम वो ड्राइव वहां पे भी अरेंज कर सकते थे, but we thought कि एक साथ कर लेते हैं. ठीक है, और अगर if we can afford it, और उस टाइम कार एक तरफ से क्या हुआ था कि एक तरफ से तो कार आ गई थी, एक वॉलंटियर था वो आ रहे थे, उन्होंने कार से बच्चों को छोड़ दिया, उधर से हम लोग ऑटो से लेके आ गए. अब शायद अगर मैं किसी इफ आई गो टू अ कैफे, लाइक हाउ आई लुक एट इट, इफ आई गो टू अ कैफे माय मिनिमम बिल इज अबाउट 1,500. ठीक है, इवन इफ आई हैव लाइक 2-3 कॉफीज और लाइक 1 coffee like a month something, that is the minimum amount of money I pay in a cafe. So I'll just avoid it for a day. I'll avoid that expense for a day and I'll do this instead. And that is how we used to convey it even in the beginning, that you just have to even if you are giving your like, वैसे भी हम आपसे पैसे नहीं मांगते, we just need your time 2-3 hours, that like 5-6 hours in a month you need to stay active in the group, which is very less. Like 6 घंटे तो आप बिल्कुल easily manage कर सकते हो पूरे महीने में. उस पे भी अगर आपके पास व्हीकल नहीं है तो we give you support कि obviously, मतलब जब मैं किसी ड्राइव पे जाता हूँ तो मेरी गाड़ी में मतलब 4-5 लोग रहते हैं. अब कई बार उन लोगों को मैं नहीं जानता हूँ, मुझे पता है कौन कहाँ से आ रहा है, I'll pick you up, मुझे यहाँ मिलना, I'll pick you up from here, you from there, and then उस हिसाब से हम लोग कर लेते हैं. कल भी हमारी ड्राइव हो रही है तो एक वॉलंटियर उसके पास गाड़ी नहीं है, तो जो हमारी लोडिंग वाले भैया हैं पहले उसको पिक करेंगे, फिर हम जाएंगे वहां पे, फिर हम खाना भरेंगे, फिर हम आ जाएंगे. तो ऐसे लाइक इट वर्क्स आउट.
अगर आप एक्टिव हो और इफ यू आर आउट देयर, इफ लाइक जैसे होता है कि आधे काम तो बोलने से हो जाते हैं, Yes. शेयर करने से हो जाते हैं। अगर आपने बता दिया आपके पास वो प्रॉब्लम है तो वी हैव अ सोल्यूशन। Yes. 10 साल से हम काम कर रहे हैं, हमारे पास हर चीज का सोल्यूशन है, आपको बस बताना है। Okay. तो आई डोंट थिंक दैट बिकम्स अ हिंड्रेंस लाइक इफ यू रियली वांट टू डू समथिंग। Okay. अभी भी वॉलंटियर्स आते हैं, छोटे छोटे आते हैं, 10th क्लास के बच्चे भी हैं, 9th क्लास के बच्चे हैं, 11th Okay. क्लास के बच्चे हैं, हाँ जी। हाँ, और रिटायर्ड लोग भी हैं, 60 65 70 साल के लोग भी हैं, तो सब लोग मैनेज करते हैं बहुत ज्यादा, लाइक यू डोंट नीड। So आप इन्हें scrutinize कैसे करते हैं that okay this is a good one, this is a bad one, या फिर ये scrutiny क्या है? So we have certain rules in place. Okay. Obviously, initially you cannot judge a person by the looks. Like Yeah. you had a similar incident very recently, right? Yeah. You'll know. You cannot judge a person. अगर normally आपका क्या एक अंडरस्टैंडिंग रहेगा कि ऐसे लोगों से मैं बात करूँ, ये तो अच्छे ही लोग हैं ना, Yes. ये इनका तो ये तो अच्छे से ही बात करेंगे, Yes. बट ऐसा सबके साथ नहीं होता। तो वो चीज हमें बाद में समझ में आ जाती है। देयर आर टीम्स इन प्लेस कि अगर आप के साथ कुछ भी मिसहैप हो रहा है, इफ somebody is talking to you in a rude way or behaving you in such a way that you're not comfortable around that person, if you complain, we get that person out of the organization. So we have certain rules in place, or that the rules apply to everyone. Yes. Like even if I do something, I can be removed. So that's brings us to the rapid fire round. All right. The deal is that you just need to answer it in one go, and you need to be very quick. Can I skip it? You may not. Cool. All right. One word for London. You cannot take that much I time. know. Cool. London. Okay, go again. One word for London. Emotions, One word for India after returning. love, Degree or experience. experience, Tea or coffee. both. Purpose or paycheck. Purpose, Introvert in UK or extrovert in India. the latter. One habit you unlearned. Loving. One habit you picked up. Can we do it again? One One habit habit you I picked up. I don't know. your superpower. My superpower, I can make anyone happy. One thing every student going abroad must know. That winter depression is a real thing. One thing every student coming back must accept. I think the love you get from your family. Okay. Describe your journey in one sentence. It's a journey. Okay. Fair. That brings us to the end of this podcast. Thank you so much for giving out time, and it was an honor to have you here. The Edmivo team is really proud of whatever you and your team is doing. Thank you so much, Vanshika, for having us. Thanks to the whole team of Edmivo. Thank like you. Pankaj, Vedahi, you. And it was a pleasure being here because I love talking about Robert Adami and like what I Yes. do. So it was pleasure having you with me. Yeah. थैंक यू सो Thank you. मच। हम यही होप करते हैं कि आज के बाद लिसनर्स सिर्फ इंस्पायर्ड नहीं, एक्शन रेडी होकर उठेंगे, क्योंकि जैसे आपने कहा, हंगर इजंट अ फूड प्रॉब्लम, इट्स अ डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्टार्ट्स विद अ रिस्पॉन्सिबिलिटी। This is Vanshika Sharma signing off for today. Until then, please like, share, and subscribe. See you in the next episode. Thank you so much.